department of the university. Its primary specialization is experimental and theoretical aspects of laser atomic interaction in gas phase, atomic weapon laser isotope separation, and currently working on new technologies on isotopes for cancer treatment and nuclear physics. We are very lucky to have him amongst us. He has come from Ashtapuram. We should thank him for having come here. We are very grateful, sir, for having accepted our invitation and come all the way from Ashtapuram, and we are lucky audience to hear you. And on this occasion of Ganesh Chaturthi, we also seek his blessings and so that they shower upon us all good things. And I leave upon you for inauguration of the program by lighting the lamp. ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। Thank you, sir. बोलानंद स्वामी की जय। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। You can start off here. The topic I am going to speak is facing the future. That's in education, business, and science and technology. First of all, let me just thank you for inviting me here. It is a great pleasure to meet all of you. Because being the local community, we know very little about Sindhis. That's because even the population is so low that it's in mathematics terms, the probability of meeting somebody as Sindhi is very, very low. So this is a kind of an opportunity also to meet all of you. It's a great pleasure. Before I start anything, I just want to know how many of you can follow English? English very well. All. हिंदी आपको सबको आती है, सो अगर जरूरत पड़ा मैं थोड़ा हिंदी में भी बोल लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेलुगु तेलुगु also that's nice. Yeah, before coming actually I've just gone through the origin of the Sindhi community in India. Then I realized the kind of a difficult situations forefathers have gone through during the partition, and a very, very unique situation where everybody had to leave their land. Because for example, in Punjab, some Muslims went there and some Hindus came here. In Punjab, some land was there, but the Sindhi community was so unique that they were landless. From that situation, I can say that if you are seeing among the top 10% of the successful people in this country, you definitely find you Sindhis among them. So it doesn't come just like that, it's a very hard work. But at the same time, it is also a challenge to me to talk to you about what kind of a topic I should talk. I just want to know also how many students are there? Students? Students, please. Students.
just very small, very small. Maybe parents take a reason on behalf of students. See, actually, what I want to talk about first about the students. जब स्टूडेंट्स की बात आती है तो हम लोग बहुत सुनते हैं कि बहुत क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है हम लोगों को और हम लोग काफ़ी और बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी जा चुका हूँ, मैं एकेडमिक काउंसिल में हूँ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, करीब करीब हर अगले हफ्ता मैं कॉलेजेस में जाते रहता हूँ। तो मैं इतना आपको बता दूँ कि जो क्वालिटी एजुकेशन हम लोग को जो हम लोग बात करते हैं ऐसा नहीं है। हम लोग यूरोप और यूएस के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो इतना क्वालिटी एजुकेशन हमको मिल नहीं रहा है। देयर आर मेनी रीजंस। वन इज, एक तो हम इतना टीचर्स पे हम लोग पैसा स्पेंड नहीं कर रहे हैं। कभी 20-25 हज़ार रुपया 30 हज़ार रुपया टीचर को किसी को दोगे तो कौन आगे काम करेगा? मैं भी खुद अगर मुझे कोई दे रहा है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो ऐसे ही ना, सी इट्स ऑल्सो नेशंस मस्ट अंडरस्टैंड दैट अगर हम लोग आगे बढ़ना है तो जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी है। जो आप गवर्नमेंट स्कूल में देख लो, कोई फैसिलिटी नहीं है, टीचर आते नहीं हैं, नो टॉयलेट्स हैं और गर्ल बॉयज रेशियो नहीं है, मतलब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। तो प्राइवेट स्कूल में जाइए तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, तो तब भी वहाँ पे आपसे बहुत पैसा ले रहे हैं। लेकिन जो कौन आते हैं, अभी मेरे ही क्लास में देख लो, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा था मास्टर डिग्री, तो मैं तो टॉपर था, मैं BRC चला गया। मेरे पास जितने भी 10 रैंकर थे वो सब रिसर्च में चले गए। अभी बड़े बड़े फार्मा कंपनीज में CEOs हैं, डायरेक्टर्स हैं, सब कुछ। लेकिन पढ़ाई में कौन है मालूम है? मेरे ही बैच से बोल रहा हूँ, लास्ट 2-3 रैंक्स। तो मतलब देखिए कैसे लोग आ रहे हैं। एंड मैं बोलता हूँ उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज फार बेटर देन व्हाट यू आर सीइंग अराउंड। तो इसमें बहुत एक चैलेंजेस हैं। अभी इफ यू सी द ह्यूमन डेवलपमेंट जो भी हुई है हिस्टोरिकली, हम लोग देखते हैं पहले जब इट वाज लाइक मोर लाइक स्टोन एज। सबसे पावरफुल आदमी कौन था? जो हंट कर सकता था, बहुत मतलब बलवान आदमी था, वो हंट कर सकता था। तो मतलब तब he was the leader of the community, उसको बहुत रेस्पेक्ट मिलती थी। So then slowly आदमी का दिमाग तो है, then they start inventing tools, वो हंट करने के लिए टूल्स। तो जब टूल्स जब इन्वेंट करने लगे तो स्किल का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा। तो जब स्किल का इंपॉर्टेंस जब बढ़ने लगा, ये सोशल स्ट्रैटा हम लोग जो बात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा ये स्किल वाले जो पहले नीचे थे they started going up. तो finally after a few 100 years then जब स्किल का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा तो ये लोग सोसाइटी में इनको रेस्पेक्ट मिलने लगा। So in terms of money, whatever equal in those days, उनको इतना पैसा मिलने लगा, पैसा और रेस्पेक्ट whatever you call it. But अभी हम लोग जो सोसाइटी में देखते हैं करीब 70% लोग मेहनत करते हैं और टॉप 30% जो लोग हैं दिमाग के काम करते हैं, उसमें टॉप 10% और हाई लेवल के जो दिमाग के काम करते हैं, और टॉप 1% तो बहुत हाई दिमाग वाले लोग। तो अभी ऐसा सिचुएशन है। अभी हम लोग आजकल पढ़ते रहते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ आ रही है, लेकिन हमको डेली लाइफ हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? ये हम लोग सोचते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, हमको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अभी देखिए, अभी जो भी काम जो कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग करते हैं, जो 20-30 लाख या 50 लाख रुपया भी कमाते हैं, वो एक दिन में करने वाला काम ये आपको 5-10 मिनट में कर लेगा। तो अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्यों हायर करूँ या 20 लोगों के बदले में मैं एक ही रखूँ? तो ये सब जैसे बिजनेस, इसमें जो भी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है सब खत्म होने वाले हैं। जो सॉफ्टवेयर अगर कोई समझता है कि मैं मेरे बेटे को कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दूँ, 50 लाख रुपये सैलरी मिलेगा, जब तक आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा ये जॉब्स नहीं रहेंगे, क्या करेंगे आप? ये हिस्टोरिकली होता आया है। फॉर एग्जाम्पल एक जमाने में मतलब छोटा मोटा जो भी
आदमी काम कर रहा है, वो एसटीडी बूथ वगैरह हम लोग देखे होंगे, समवेयर इन 80s 90s छोटा मोटा एसटीडी बूथ होता था, वहाँ पे हम लोग जाकर के फ़ोन करेंगे, वो पैसा दे करके एसटीडी कॉल कर लेंगे। तो ऐसी जॉब्स थी, कहाँ गए वो सब जॉब? जो अभी मोबाइल फोन जैसा आ गया, सब जॉब निकल गए। अभी देखिए इतने सारे ड्राइवर्स हैं कम्युनिटी में, अभी अगले 20 साल में क्या होने वाली है, सब हमारे कार जो हम लोग चलाते हैं सब खत्म हो जाएंगे, सब ड्रिवन ऑटोमेटिकली बाय द कार इटसेल्फ, इट विल हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टॉल्ड इन इट, सब ड्राइवर जॉब खत्म हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? सो ऐसी स्ट्रेस की सिचुएशन है कि हमारे बच्चे जो बढ़ रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती है, वो कामों में लगना चाहिए अगर वो जॉब करना चाहते हैं। तो ऐसे काम करने के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बहुत ही ज़रूरत है, वो हम उसमें नहीं है। जो अभी अगर दुनिया के सबसे टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हम लोग निकालेंगे, उसमें 20 चाइनीज यूनिवर्सिटीज हैं, ओके, उसमें इंडिया के एक भी नहीं है। दिस इज अ रियलिटी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ चैलेंज। आप समझ लो एजुकेशन में ये सब चैलेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन जो मेहनती है कोई भी फील्ड में जा सकता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है, कोई कंप्यूटर का इंजीनियर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज वही लोगों को है जो टॉप 1% में आ सकते हैं। वो टॉप 1% में होने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है, मेरे अंदर फायर की जरूरत है, वो टीचर से ही आएगा। तो आप उनको जो भी बोलेंगे कि मतलब ये फील्ड अच्छा होगा, वो फील्ड अच्छा है, नहीं, उनके हिसाब से मतलब उनको जो अच्छा लगता है, जो पैशनेट है सब्जेक्ट में, ऐसे सब्जेक्ट में उनको भेजिए, तभी उन लोगों को कुछ न कुछ बन सकते हैं। अगर जबरदस्ती हम बोलेंगे कि कंप्यूटर में घुस जाओ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, लेकिन जब तक वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो डिग्री मिल गई, कुछ नहीं। आजकल के ज़माने में इन्फोसिस में एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कितना मिलता है पता है? 3.2 लाख पर एनम। 3.2 लाख, वो कुछ नहीं है। आपके जो शायद आप मेरे बिजनेस में आपके पास जो काम करते हैं शायद उससे भी कम कमाते हैं, वो इन्फोसिस वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनसे भी कम कमाता होगा। सो ऐसे चीज़ जो हो रहे हैं, दीज आर रिवोल्यूशनरी। और दूसरी चीज़ जो है, जो मैं देखता हूँ, आई डोंट नो फाइनेंस का भी आदमी हूँ, सो इसीलिए जस्ट टॉकिंग समथिंग अबाउट फाइनेंस which is more relevant to the business community here. All of you know that there is something called world order. हमेशा दुनिया में जो कई वर्ल्ड इकोनॉमीज बढ़ रहे हैं और जो इकोनॉमी घट रही है तो कोई और इकोनॉमी बढ़ेगी। So for example, we have seen in the history several people are coming up and going out. For example, Britishers ruled us for 200 years, 300 years. What was there in their hand? The technology. मतलब वो लोग बारूद वगैरह बना सकते थे, हमारे पास तो नहीं है, वो हम लोग आकर के ऑक्यूपाई कर लिए। तो हमेशा दुनिया में यही ट्रेंड दिखने को आया है, जो भी टेक्नोलॉजी इसके हाथ में है उसकी अपर हैंड होगी। और आप एक अच्छा किताब है, आपको किसी को पढ़ना है, इट्स कॉल्ड द वर्ल्ड ऑर्डर बाय वेरी वेल नोन इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट कॉल्ड रे डैलियो। तो किसी को पढ़ना है, एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंस यू कैन रीड। अभी की जो वर्ल्ड फाइनेंस की जो टेरिटरी है उसमें क्या है, अमेरिका का डाउनफॉल हो रहा है, और व्हेनेवर देयर इज अ डाउनफॉल इन द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री, दूसरा कोई और कंट्री का इकोनॉमी बढ़ेगी। अभी आप सबको मालूम है उस जगह जो अमेरिका का डाउनफॉल हो रहा है वहाँ पे चाइना का ग्रोथ हो रहा है। तो चाइना, अभी देखिए अगर चाइना इतना सुपर पावर हो जाएगी तो हम लोगों को काफ़ी तकलीफ है। मतलब देखिए अमेरिका में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो काफ़ी लोगों को, इंडियंस को जॉब मिला है वहाँ पे, बहुत सारे हमारे लोग जाकर के वहाँ पे जॉब किए हैं, तो हम लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर चाइना टेक्नोलॉजिकली सुपर पावर हो गया, उनमें झाड़ू वाले से लेकर के
टॉप CEO सब चाइनीज ही रहेंगे, मतलब हर एक जो बिजनेस का हर एक पैसा जो भी है उन्हीं के पास जाएगा, बाकी लोग दुनिया में कुछ नहीं रहेगा. So ये these are some kind of a distant neighboring, being a neighboring nation, these are some of the threats. Internally हमारे अंदर और कहाँ चेंजेस होने वाले हैं. For example, you see food industry. Many of you I think have food industry. For example, there is something called a grand unification of food हो रहा है. For example, देखिए सुबह के नाश्ता बहुत सारे लोग आजकल सोच नहीं करते हैं, दोपहर का खाना या रात का खाना वेरी लाइक रोटी सब्जी का. और साउथ में भी या नॉर्थ में भी दोनों वाइफ एंड हस्बैंड दोनों जॉब में जाने के लिए जाते हैं, तो अभी उनको बहुत कम टाइम मिलता है. तो ये सब अगर ये स्ट्रेस मतलब उसके ऊपर से खाना बनाना वगैरह 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 वगैरह, ये जितने भी जॉब होते हैं दे किल लॉट ऑफ टाइम फॉर इंडियन वुमेन. सो एक ऐसी भी कोशिश हो रही है कि ये फूड में एक यूनिफिकेशन हो जाए, इजी फूड्स, मतलब रोटी रोल्स, those kind of things which can be easily distributed. This is going to be there. तो आप अगर फूड इंडस्ट्री में है, आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है. तो अगले 20-25 साल में ऐसे होने वाले हैं कि देखिए सब लोग खाएंगे, लेकिन पिज्ज़ा वैज़ा को तो वो वेस्टर्न फूड हो गया, पिज्ज़ा बर्गर्स वगैरह, उसके इंडियन वर्जन्स बनेंगे which are eaten by people on a daily basis. तो ऐसे चीज़ों में आपको बहुत सारे फूड इंडस्ट्री, सो नेम इंडस्ट्री, जो अगर हम लोग बात करेंगे रेगुलर पुलिस, जो पुलिस जो हमको दिखती है, अगले 50 साल में कोई पुलिस आपको दिखेगी नहीं रोड पे. मतलब आपको सब CCTV सर्वेलेंस होगी, रोबोटिक पुलिस रहेंगे, तो वही मॉनिटर करेंगे, कोई गलत काम करेगा और रोबोट ले जाकर अंदर कर देगा, तो पुलिस के जॉब खत्म हो जाएंगे. डॉक्टर्स के ऑलरेडी चाइना में एक हॉस्पिटल आई है विच इज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय रोबोट्स. तो इवन ऑपरेशंस टू द पेशेंट केयर, मतलब जो भी डॉक्टर की कम्युनिटी अगर सोचेंगे तो वो डॉक्टर सही है, तो मतलब डॉक्टर के प्रोफेशन में सेफ है, ऐसे नहीं है. तो ये बट ये सब चीज़ें जब भी ये सब जो डिफिकल्ट चीज़ें जो आती हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज भी ले आती हैं. तो हम लोग किस साइड में हैं? हम लोग थ्रेट साइड में हैं या अपॉर्चुनिटी साइड में हैं? हम लोग को थोड़ा नॉवल सोचना होगा और इसमें हम लोग कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा ये सोचना है. अगर जब आप ये सोचेंगे डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम्स. इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत चीज़ें हो रही हैं. लेकिन जितना भी मतलब एनर्जी मिले इंसान को वो उसको उतना ही कम पड़ता है. तो हमारे बचपन में हम लोग देखे तो कम से कम 5-6 घंटा का पावर कट होता था, तो मतलब 16-20 घंटा अगर मिल भी रहा है तो उसमें क्या है, एक छोटा लैंप और एक फैन किसी के घर में होता था, और लेकिन पूरा मोहल्ला में एक 2 व्हीलर होता था, पूरा शहर में एक कार होता था. छोटा मोटा स्मॉल टाउन्स, नॉट बिग सिटीज, नॉट लाइक बॉम्बे. आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल टाउन्स, नॉट इवन विलेजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट टाउन्स. तो अभी हर घर में कार्स या 2 व्हीलर्स या घर में एयर कंडीशनर्स या उनके लैपटॉप. Sir, thank you once again for gracing this occasion, and I'm sure you added a lot of value today evening. Thank you so much once again for traveling all to meet everybody. And you guys, the Vice President, to please hand it over. Thank you, sir.